अरे अभी अभी So I would like to say hello, namaste to everyone here present, and like to introduce Lift India Filmotsav and Awards Cinefest 2020, the fourth edition, with the founder Mr. Riju Bajaj and a director Upendra Channaji. So welcome both of you, sir. Thank you, I Madhvi, hand th- for over the. the thank you, I Madhvi. hand over the thank you, sir, and I hand over the conversation to Mr. Riju Bajaj. Please take forward, sir. Thank you, Madhvi. As you know, Madhvi, Mr. Chanana has made a film, a documentary film called "The Living on the Edge: Deglamorizing Bollywood." Ji. Uh, it talks about a lot of uh, dark subjects, dark areas which happen behind the scene in the world of the glamour world, and he has really dealt with those, brought out those issues which a lot of artists, technicians are craving and want to be heard and are looking for solutions. And thank you, Chananajit, for having given so much of your attention to these subjects. जिस तरह से आपने उनके बारे में बोला, इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग एनीबडी, हर तरह के इश्यूज हैं, चाहे वो एक्टर्स से हो या टेक्नीशियन से हो या स्टंटमैन से हो, स्पॉट बॉय की प्रॉब्लम्स हो, जूनियर आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हो, हर विषय पे आपने उसमें टिप्पणी की है, उनकी समस्याओं पे एक नजर डाली है. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया इस सब्जेक्ट पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए. I'll give you just to trace the background of this documentary. I was associated with all the craft bodies as its head, and also part of the global non-political movement. And during my tenure till 2008, I was frustrated. I was angry that this workforce was not getting any social security whatsoever, no recognition from the state and the central governments. And then I brought out a book called Living The Missing Three in Bollywood: Safety, Security, and Shelter. This book was a 500-page tracing the history from the formation of the first union with Jairaj Prithviraj in Lahore in 1936. Uh, then what happened was I thought there is no way out for me, uh, because in the entire industry I am known for my I don't want to beat about my own personal reputation, but I am respected a lot for my integrity and honesty. Now this passion, this anger was trying to find an expression. Now, Rijuji, you'll be surprised to know that I have the God-given gift. I never pen anything. Is all there in my mind. That is acquisition of the knowledge and turning into wisdom. So when I decided to, we had a 5 years health and safety working condition international workshops where people from all over the world will come, and we would discuss what are the global practices. Now this book is actually covers all parliament proceedings and everything, is like a testimonial and reference book for students of mass communication all over the world. Students still, while doing their PhDs, are referring to this book. This is the only reference point of view for them. Now that was my first effort, and I thought that the visual story is very. I was every day getting calls. I was associated with Cinta. I was every day looking with my own eyes on sets. People are working for 18 hours. People are working no holiday. The payments are not given for sometimes for 6 months. Then the largest union, the labor union, which was headed by Mithunda, because Mithunda was earlier a very close friend. We happened to go to Appreciation Festival, Tashkent and Moscow.
He Ji. invited me to be their advisor. Then Ji. every day I was coming with people with injuries on the set, with no gum boots, with no safety precautions, and I found out that their families were living a life of penury. They had no access to any social security, and whatever unions could do, they could do. But the unions changed, and so do Ji. the welfare schemes also changed. The ideal Ji. thing would have been to bring them under one legislation that is available to organized sector. So Ji. 2 years back, when I made this film, can you imagine, with the grace of God Almighty and my own passion and knowledge, I Ji. connected with people. I thought I'm going to make such a long documentary, Ji. and I don't need a script for that. I kept Ji. on meeting people. I never asked them questions. They knew my background. They knew these untold stories, I call them, wanted Ji. to come out of the heart. People Ji. cried, as you would have seen. They were senior citizen. I found out while walking down the stair. I always had a Ji. camera. And Ji. while walking down, I said, this man, very old man, 80 years old, he was always coming to Cinta office. And then he Ji. was resting a while. I got Ji. to him. I asked him, sir, I see you every day. He said, search Google. I was a leading man of 5 feature films. Dara Singh brought me over here. Today, Ji. all my property is taken by my children. I'm washing my own clothes. I'm making my own food. Ji. And he started crying from the heart. I don't know how many days I have to live. Can you imagine? I captured it all, and after 50, I told him that I am going to help you. I'm going to. There Ji. is a law pertaining to senior citizen. He Ji. died 15 days, after I shot Oh. it. Oh my God. Then actresses and all that, they were literally crying. So I thought people consider documentary something statistics and all that. Ji. I sitting down on the editing table with a very good star editor of mine. We Hmm. connected all the stories, and I wanted to Hmm. go for Western classical music. I was a great fan of a lot of piano. I was great fan of a lot of composers who composed for Dr. Zhivago and so many other films. Then Ji. can you imagine? I had original music composed for it. Ji. I spent a lot of money. I had DCP and all that. Now, Ji. initially, the festivals here, big festivals here, which were Ji. managed by big corporate houses, they refused to accept it. Although I have not named anyone in the festival, I've Hmm. only raised, as you see, only the relevant issues pertaining to such a large force. It's considered to be the largest workforce running into Ji. millions in the whole world. So my Ji. idea was, let this documentary be the voice of the voiceless people, because you So will nice. see that everybody, entire media, never Ji. highlights these problems of this unsung, silent people who are contributing in making of the content. Ji. So you can imagine what must be their plight in this pandemic. They Ji. were having no food. In fact, the families, I will say it was a pandemic of hunger for these people. I joined because this documentary also got the main award in Boston, and our Ji. Mikhailin Czech in New York, Vikas Khanna, he Ji. got connected with me through Sushant Singh. I'm talking of Sushant Singh of India's fame. Ji. He said, Opender, you are the only person I trust. You can. He wants to distribute a Ji. lot of food stuff to all the people, irrespective of the religion, irrespective of which craft they belong, but they should be a part of the industry. Ji. So we worked for 12 days, and we had a organic food. We provided ration for 1 month to all the went to the host. They were crying, and they were, literally dying. I'll tell you. Even now it is happening. Now it is happening. But tell me, any press, any video channel never highlights this. Nobody. But what happened slowly? The small town area started accepting my film because they were touched. I've seen people coming here for workshop where it was inaugurated in 1917, 2017. A woman from uh, Sweden was literally crying after seeing it. She said,
Is this a condition of the woman and the Hmm. other people? I'm so Hmm. shocked, Upinder. Then Hmm. it started covering 40 countries. Can you imagine? They asked me for permission to screen it. No documentary has found, an Indian documentary has found a place in theater like Peru, Lima, Ecuador, entire Latin America, Mexico. And in Hollywood alone, in Ji. California, it won 30 awards. And I got a letter of so much of protest. What is happening? This is Bollywood, which is a giant, claiming to be a global giant with turnover of millions and millions of dollars, where all foreign streaming channels are earning Ji. millions of revenue. This is the Ji. condition of the people. We don't have that kind of condition. After a lot of efforts, the state government formed a committee, and I submitted an 18-point charter on Ji. working conditions, on timely payments, and Ji. copyright and everything. That Ji. committee, unfortunately, last year it was disbanded. But the labor commissioner was very sympathetic to me. He said, "You send this copy to the labor minister and refer your document." I sent it. Hmm. One very good development, which partially is an outcome of my documentary, which is the redemption for my work and all the money that I spent it. For the first time, 48 labor laws were abolished from British time, Wow. and there is a mention of all the workers engaged in web content have been recognized audiovisual workers. Now it is Lovely. possible. I am having it studied by Supreme Court lawyers and my other friend in ESIA scheme. Ji. How this is going to benefit us? Still, I launch a campaign Ji. to acquaint the unions and the workers, because everybody is net savvy today. If there are Ji. tribunals to resolve your cases, 30 days, letter of engagement that needs to be given, 8 hours of working, holidays which are there in organized sector. I would say Ji. even a worker, a peer in a bank enjoys social security more than even a cinematographer here. I've Very seen true. the I've seen the conditions of assistant directors or assistant makeup artists, and I'll tell you, you'll see that the makeup artist in the film in the beginning, she Ji. travels. She's a single mother. There are a lot of single mother bringing single-handedly their own children. Three Ji. hours from Mira Road, she travels and she come back. She doesn't even Ji. get conveyance money. How does she Ji. manage the home? Sushant mentioned about it. If they ask for conveyance, they said if they give as if they are obliging people. Now So, everybody, sir, 1 minute only. Everybody Ji. is so glamour struck that people. I know the star's contribution is very important, but content is more important as well. Ji. Everybody comes and takes photographs. They have so much of fans and everything. But Ji. tell me, in any reality show anywhere, do you find a technician finding a place? No. No. No, as if they don't exist, their problems don't exist. Ji. This is the tragedy in our media and especially in television. Hmm. Uh, I'm not using going against anyone. It's like a quid pro quo game. You come on my show, promote my film, and then go away. So Yeah. there is no focus at all on the people. People who construct sets, people who Ji. design costumes. And Ji. my film says, can you imagine Rijuji and Madhvi? Many women are suffering from urinary tract infection. In my Ji. film, Ji. shockingly, I have shown the Ji. the Yes. condition of the toilets. And Ji. let me tell you, it was very difficult to. I saw where the food is being served. There is an art director who says that there is a caste system in the industry. The kind Ji. of food served, you stand on the thing and then eat, and there are no hours, there are no designated places to change over for junior artists. All these issues have been, taken up, and I think it's a revelation for the global audience. And for now, getting 264 awards was no mean joke. Initially, I had Ji. to spend a lot of money film free was submitting, because as we discussed yesterday, all these big festivals, they don't require indie filmmakers, in which you are doing a great job. Yeah, Yeah, I हमारा can. our festival is primarily for independent filmmakers. Yeah,
Now, Riju, when I get up in the morning, I get hundreds of mail from Port Blair to Venezuela, everywhere. They are not asking only stuff. They just want to show my film because जी। it's like, तो उपेंद्र you जी, know, मैं आप चाहूंगा कि आप बताएं कि आपने फिल्म में जो प्रॉब्लम्स टच की हैं, जी, थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनमें से कई जी, लोग हैं जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी है। तो मैं चाहूंगा कि ओके, अगर उस अपनी फिल्म के बारे में आपने बताएं कि ये फिल्म किस बारे में है और किस तरह की हाँ, प्रॉब्लम्स आपने इस फिल्म में दिखाई हैं। see, living on the edge, आप हिंदी में बोल तक, सकते हैं आप। हाँ, लिविंग ऑन द एज, डी ग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। बॉलीवुड को एक ग्लैमर इंडस्ट्री समझा जाता है, बॉलीवुड को एक आइकॉनिक इंडस्ट्री समझा जाता है। लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, स्टार्स को फॉलो करते हैं, पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। लेकिन आम जनता को, खास तौर पर हमको तो पता है जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो ये फिल्में बनाने से, भले वो कैमरामैन है, भले वो ट्रॉली मूवर है, भले वो खाना प्रोवाइड करने वाला है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनकी हालत बहुत ही खराब रहती है। बहुत से लोग हैं जो गरीबी में मर जाते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलती, खाना सही नहीं मिलता। तो मैंने ये अपनी आंखों से पिछले 25-30 साल से देखता आ रहा था। तो जी मैं चाहता था कि उनको एक माध्यम मिले कि इन जी लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे, दुनिया में पहुंचे, कि देखो हम भी उतने हकदार हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई है, बड़ी है, हमें जी क्यों डिप्राइव किया जा रहा है सोशल सिक्योरिटी से, किसको जी पता ही नहीं है। तो जी ये जो मेरा गुस्सा था अंदर, एक मेरा एंगर था, अंश था, जी कि जी मैं ये दुनिया के सामने, सरकारों के सामने लेके आऊं, जी ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बड़े बड़े स्टार के साथ पोज करें। मैंने, सर नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े स्टार को बोला कि सर, आप इस वर्क फोर्स से ही बने हो, इनके साथ जुड़े हो, आप जी इनका ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनते हो। जी लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मुझे ही ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ा, एक छोटे आदमी को। तो आज मैंने समझता हूँ सर, इस जर्नी में अगर जी कोई वो, होपफुली अगर ये नेटफ्लिक्स से एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हम्म, वो जिसके पीछे मुझे जो सहायता दी गई है वो रिजिजू ने दी, क्रेडिट गोज टू हिम। और पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आज मिलियंस ऑफ पीपल आर वांटिंग टू सी इट। अभी तमिलनाडु में हुआ, पोर्ट ब्लेयर, सब लोग मांग रहे हैं सर, हम परमिशन दो, हम थिएटर में। मुझे डर लगता था कि मैंने अभी तक कोई वीओडी प्लेटफॉर्म, अभी नेपाल में दिखाई जा रही है, तो जी उन्होंने भी मांगी कि मैं वीओडी चैनल में। मैंने कहा अगर मैं वीओडी में पहले दूंगा तो अपने लोनावाला फेस्टिवल में दूंगा, जी अगर कहीं कुछ होता नहीं ये है, ले, दैट इज हाँ माई जी, हमारा अश्योरेंस। या बिकॉज, दिस, हाँ तो बिकॉज आई रिकॉग्नाइज एज अ ट्रूली, एक ऐसा जी, फेस्टिवल है, ये प्रेस्टिजियर लेफ्ट है। इंडिया फेस्टिवल है। हाँ, ये लिटरेचर आपने बताया, इसकी अगर इंटरप्रिटेशन करो तो ये कोई जी चलता फिरता फेस्टिवल नहीं है। इसके जी साथ मैंने शुरू में बोला, एक लीगेसी जुड़ी हुई है। तो हम भी जब वहां फिल्म भेजते हैं, लास्ट ईयर में आने वाला था, नहीं आ पाया था, आपको पता है। तो जी। मुझे, और हम मैंने, आपकी फिल्म एक दिखाना चाह रहे थे क्योंकि लास्ट मिनट हमें मिली थी, और हाँ, मुझे, क्योंकि मैं समझ, मेरे अमित से बात भी हुई थी कि हमारा शेड्यूल एकदम पैक्ड है, और जी, वी वर ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल। तो मैं बोला मैं इस तरह से नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये फिल्म इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको जी, प्रॉपर एक फोकस लाइट दे के फिर हम उस फिल्म को दिखाएं, उसके बारे में चर्चा करें, हम्म। तो बात बनेगी। अदरवाइज फिल्म दिखाना सिर्फ आई गई सी बात हो जाएगी। सो सर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, एक चीज मैं और, जी सॉरी, ऐड करूंगा। जी जब मैंने ये फिल्म बनाने शुरू करी तो मैंने सोचा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, क्योंकि मैंने देखा लाइट्स और ये बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे, हर चीजें जी थी। तो जी मेरी जो स्टडी थी, मैं आपको बता दूं, मेरी 200 पब्लिकेशंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल सिनेमा। मनिकदा के टाइम में फेडरेशन का भी हेड रह चुका हूँ 5-10 साल, और छोटी छोटी ये, आज क्योंकि स्ट्रीमिंग आ गया, एक जमाने में 16 mm के जो हमारे प्रिंट्स होते थे वेरियस कंट्री में, छोटे छोटे टाउन्स में, ट्रूफो से लेके गोडार्ड तक लेके, जानुसी को लेके, मैं उनकी जगह गया, एक इंटरनेशनल सिनेमा को एक्सपोज किया। एंड जी देन आई हैपन टू रिएक्ट विद ऑल दीज ग्रेट फिल्म मेकर्स। तो मेरा एकेडमिक साइड भी मैंने छोड़ा नहीं।
तो जी मैं एक बार मैंने 24 मास्टर्स थे, आपको शायद याद होगा, जीगा वेर्तोव, the जी founder of documentary cinema 19, he made a documentary called Man with a Movie Camera. जी Then I went back to the fundamentals of cinematic language that evolved out of David Bar Griffith. जी Then an outcome of debate and discussion between Pudovkin and Einstein, the theory of montage. तो जी मैंने मदर देखी थी पुडोफ्किन की, तो मुझे एक चीज याद आ गया कि क्लोजअप को कितना इफेक्टिवली यूज होता है। मेरे को साउंड का प्रॉब्लम था, तो आपने जी कहीं देखा मैंने एक्सट्रीम क्लोजअप दिखाई दिए एंड सीन में भी। और घाई का भी जो एक्ट्रेस है, जो अस्पताल में रही, एक साल काम नहीं कर पाई, तो आप जी देखेंगे कि मैं आंसू तक दिखाई दे रहे हैं। आज हम भूल गए हैं लॉन्ग शॉट कट इन। मैं बेसिक चीज में गया, मैंने कहा, और वही चीजें लोगों को टच की कि दे कुड सी, उनको ऑनेस्टी दिखाई दी, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैंने वो फॉर्मेट किया। सब लोग बोलते थे नहीं ये करोगे तो सक्सेस नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा कि फंडामेंटल इसी में, कि विजडम इसी में है कि आप अपना बेसिक स्कूल में जाओ। और जिन जी जिन मास्टर्स की मैंने फिल्में देखी, वो आज मेरे डीपली इम्प्लीमेंटेड। कहीं ना कहीं तो हमको मास्टर्स करते हैं, भले वो ऋत्विक घटक था, मृणाल दैन थे, कहीं ना कहीं एक कोलाज ऑफ influences work subconsciously in your mind. So I put जी them into use, and I thought it is very important, ये जरूरी है कि आप लोगों के दिल को छुओ, और जी ऐसा छुओ कि वो भले किसी भी कंट्री का हो, हार्ट तो वही है, सोल तो वही है, जी उसकी तो कोई जी भाषा नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो लोग मूव उपेंद्र जी, होते मैं हैं। हम इस पे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये दो यंग या बडिंग डायनेमिक एक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं। माधवी ग्रेट। इज रिप्रेजेंटिंग द साउथ ऑफ इंडिया बिकॉज शी इज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। ग्रेट। साहित्य हैं जो एक्टर हैं, बॉम्बे में बेस्ड हैं। ही इज ऑल्सो आवर सिलेक्शन पैनलिस्ट। जो हमारी फिल्में आती हैं हमारे यहाँ पे, वो उसका सिलेक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत अच्छा सिलेक्शन ये करते हैं जो फिल्में ग्रेट। ग्रेट। इन्होंने देखी, बिकॉज काफी संख्या में फिल्में आई हैं, और ये पिछले या 6 महीने से ये लोग फिल्में देख रहे हैं, बिकॉज हमने इस फेस्टिवल को डिजिटल जाना है, ये हमने जून में तय कर लिया था, चाहे हाँ वो कोरोना तो हो या ना हो। हमने या तभी अनाउंस कर दिया था, और हमने तभी 25 दिसंबर की जो डेट है वो अनाउंस की थी कि हम 25 दिसंबर को अपने अवार्ड्स अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। हम फिल्म्स नहीं स्क्रीन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना एंड एटसेट्रा। आई तो ये अंडरस्टैंड। फॉर्मेट हमने, सो वी वर इन फैक्ट टू बी फर्स्ट फेस्टिवल विच वेंट डिजिटल इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। उस समय तक इंडिया में कोई ऐसा फेस्टिवल जिसने ऑनलाइन अनाउंस किया हो, ऐसा मेरी नहीं था। जानकारी में तो या नहीं है। आई अंडरस्टैंड, वो तो है। दुनिया भर में कोई और नहीं था, सिर्फ टिफ ने एक ऑनलाइन किया था कुछ दिनों का छोटा सा। उसके अलावा किसी और फेस्टिवल ने नहीं किया था तब तक। तो आप कह सकते हैं कि शायद दुनिया में हम दूसरे या तीसरे फेस्टिवल थे जिन्होंने ऑनलाइन डिसीजन लिया था। ग्रेट। ग्रेट। मैं चाहूंगा यहाँ पे माधवी, चूंकि एक महिला होने नाते इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, एज एन एंकर, एज अ मॉडल, तो उन्होंने किस तरह की तकलीफों का सामना किया या ना किया हो? अगर आप कुछ सवाल करना चाहें माधवी जी उपेंद्र जी से कि इस बारे में, कि जो सिस्टम जो उपेंद्र जी ने अपनी फिल्म में दर्शाया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं एक टेक्नीशियंस को, इवन एक्टर्स को, कलाकारों को, हर बहुत। लेवल पे, तो उनके क्या समाधान हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, और कैसे उसको सामने लाया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है? कोई कई बार मैंने देखा है कि हम प्रेस को बताते हैं तो प्रेस भी इस बारे में नहीं छापती है, कतराती है, डरती है, उनके अपने कारण हैं कि वो नहीं सामने आना चाहें। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। हमें उस बात का डर नहीं है, हमें अपना पक्ष सामने रखना है, अपनी समस्याएं सामने रखनी है। हमारे जो सह कलाकार हैं, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, उनकी समस्याएं हमें सामने रखनी है। समाधान ढूंढने के लिए और माध्यम है, आप लोग हैं, दूसरे जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, एसोसिएशंस में जो काम कर रहे हैं, ये उनका काम है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे इम्प्लीमेंट करें। हम उनको समस्याएं दिखा सकते हैं, सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ये उनका काम है।
कोशिश करेंगे कि कभी हम भी उस पोजीशन में आए कि वो जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सके। तो माधवी, मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ बताना चाहें या पूछना चाहें उपेंद्र जी से। जी हाँ, sir, when I saw the film, it was really touching. The scene when a stuntman told कि हम कभी कभी एक एम्बुलेंस भी नहीं होती है सेट या पे, एंड और हम ऐसे ही चले जाते हैं। उसके अलावा when I saw especially the kind of problems of having a conveyance, the payments, the wages 90 days के बाद मिल रहे हैं। I will not name someone, but I had someone on my show as a celebrity guest जिन्होंने मुझे ये बात बताया कि हम छोटे आर्टिस्ट के लिए भी पेमेंट नहीं मिलती है, सो वी हैव टू रियली फाइट फॉर इट। तो जब एक एक छोटे आर्टिस्ट भी ये बोल सकते हैं, तो दीज आर द पीपल जो उन लोग को बनाते हैं, यू नो जो बिल्कुल। बैक एंड में काम करते हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो एक यस सपना माधवी। लेके जरूर आते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, मे बी हम असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, हम असिस्टेंट कुछ बन सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनको ही कुछ नहीं मिलता, तो वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाई कैसे देंगे, एक तालीम हाँ, कैसे देंगे। वो आपने देखा होगा सीन जो कुर्ला जी के हाँ, पाइपलाइन में वो जाता है, मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल टेक्नीशियन, वेरी प्रोग्रेसिव, एंड ही, वहां बिल्कुल तो एक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, कौन आदमी निकले, और वो बिल्कुल मतलब डे एंड नाइट कितने सालों से काम, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना आता है, दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो एक छोटे से क्यूबिकल में बैठ के दिखाया है कि जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, जो एडिटिंग करते हैं, ऑफ कोर्स कला को एक जगह बांध के नहीं रख सकते जब तक एक नेचर में ना दिया जाए। चाहे वो एक आर्टिस्ट, चाहे वो पियानो प्ले कर रहा हो, चाहे वो तबला प्ले कर रहा हो, चाहे वो ड्रम प्ले कर रहा हो। दैट वाज वेरी वेरी सैड कि 24 आवर्स उनको वहीं पे कपड़े ले जाके लेटना पड़ना है, सोना पड़ता है, वही उनका एक छोटा सा घर बन जाता है। आई थिंक दिस इज समथिंग, एक एक मुहिम है जिसकी आई डोंट नो, आई विल रिपब्लिक भारत है जो इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई विल से अर्नब गोस्वामी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को सामने लाए हैं, बट ये चीजें सच में सामने नहीं आई हैं। हाँ, मैंने भी बोलना चाहता था, मेरे को, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, अरुण बख्शी और कितने लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि भाई बहुत ज़रूरी है कि एक्टर कितने सुसाइड करना है, लेकिन इस पर क्यों नहीं स्टोरी करते, और मैं आपको पूरा डाटा देता हूँ कि क्या हो रहा है। जब मैं सुनता हूँ कि जी बॉलीवुड की जो वर्कफोर्स को इग्नोर किया जा रहा है सब चैनल्स में, तो मुझे बिल्कुल बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि काश मैं वहां बैठा बोल रहा होता था, तो मैं ऐसी स्थिति में प्रूफ बताता था। तो उपेंद्र जी, वो, आपको क्या लगता है कि वो लोग क्यों क्यों इस बात पे लाइट नहीं डालना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं इस विषय पे? सर पहले तो ये है कि आज छवि जो है, एक मीडिया और टेलीविजन ज्यादातर करोड़ों लोग तक पहुंचता है। जी लोग इतने सालों तक इंडस्ट्री को जुड़े हुए हैं, वो फैंस हैं, इतनी बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, वो एक ग्लैमर के साथ है। सी, जी कि पीपल थिंक, मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरा एक आदमी था, गांव गया, बोला गांव में जी सोचते अरे तू बॉलीवुड में काम करता, तू तो करोड़पति होगा। But that person was fighting was this kind of pathetic working. Now, Madhvi ji, you're a woman, and let me tell you, you have seen जी the kind of जी toilets. And when I had टॉयलेट्स हैं। this World Health Conference 5 years, I was a coordinator. You know, they जी have special facilities for maternity leave. जी They हम्म have special facilities for working women. Even हम्म वो इसलिए है कि they are protected by the law of the land, which we are not. This is what makes the difference. You understand? जी जी और खासतौर मैंने आपको बताया, सिंगल मदर्स हैं, ट्रैवलिंग हैं, तो क्या होता है, अच्छा तू काम नहीं करेगा भाई, तू जा दूसरे लाइन पे खड़ा हुआ। नो, हाँ विद द कमिंग ऑफ टेलीविजन, दुनिया से लोग आ रहे हैं। आप देखो, सिंगिंग है, डांसिंग है। एक जमाना था जब लोग इंडस्ट्री में माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, ये कुछ बिल्कुल गलत लोगों बिल्कुल के लिए बनी थी। आज तो माँ बाप, मैंने एक पिक्चर देखी थी,
मैं प्रकाश मेहरा के स्टूडियो में, लेट मी टेल यू, आई रोट 10 डायलॉग्स फॉर 29 फिल्म्स इंक्लूडिंग मैंने प्यार किया एंड हम आपके हैं कौन, मेड दोज वर्जन एंड द सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। एक लड़का था जो महाभारत किसमें था, ही वाज जस्ट 11 years old। प्रकाश जी के स्टूडियो में आता था, राणे जी रिकॉर्डेड थी, ही यूज्ड टू बिहेव लाइक एन एडल्ट। उनका क्या हो गया, ही इज एक्टिंग लाइक एन एडल्ट, और इसका चाइल्डहुड कहाँ गया। तो आजकल माँ बाप इतने पुशी हो गए कि अपने बच्चों का बचपना एडोलेसेंस छीन के they become a source of income for them. I know talent is important, but at that time you should not compete. You should acquire knowledge and wisdom. That is not the age of innocence to be destroyed. So, in nutshell, Madhvi ji, you are also experiencing, and my focus has always been to women. मैंने ये So देखा कि Madhvi, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि have you faced any particular kind of problems and issues which you think जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और आप उसके बारे में बोलना चाहेंगी यहाँ? Yeah, when I was in Mumbai, when I was learning dance from my guru, late Saroj Khanji, at that point of time, I remember she used to always tell me, हाँ ठीक है, sets पे आ जाओ, DID के dance Indian dance पे, and we will introduce you, ये करेंगे, वो करेंगे, and I was like, my mother was always hesitant, you know, कि ये इस line में नहीं जाना है. I'm to be very frank, क्यों? because she was, yeah, she was being told, or she had an impression that it's like a काजल की कोठरी. अगर आप पास से भी गुजर exactly, जाओगे, अगर आप पास से भी गुजर जाओगे, तो अगर हल्का सा भी काजल लग गया या नहीं भी लगा, तो वो कहेंगे कि ये वहां से होके आई है. So at that point of time, we were always instilled in our mind कि पहले study करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, और उसके बाद जब तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम कुछ भी हैंडल कर सकते हो. यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट yes. कि अगर इस इंडस्ट्री में देयर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑल्सो. अगर आप चलते हो तो फिर रातों रात फेम मिलता है, और अगर नहीं चलते हो तो फिर कुछ नहीं है. आपने सो बहुत एक रेलेवेंट पॉइंट बोला। तो मेरे ख्याल में मैं जितने भी ऐसे लोगों को, अगर उनके पास कोई और हुनर है, वो पार्ट टाइम कंटिन्यू करते रहें ताकि उनके लिए एक सर्वाइवल का माध्यम बना रहे। बिल्कुल बहुत से बिल्कुल लोगों के पास बिल्कुल. भले वो अकाउंट्स लिखना जानते हैं, बीकॉम है, जो भी है, जी वो साइड में जी अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखें, क्योंकि दैट जी. नॉट एवरीबॉडीज पेरेंट्स कैन सपोर्ट सेंड यू मनी, नॉट एब्सोल्युटली. एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम वेल ऑफ, most of them are lower and middle class people also. This is a very valid point you डेफिनेटली. have made. एक पॉइंट सर मैं और बोलना चाहता था माधवी जी, जी how many people are women are decision makers? This is very important. So I tried to rope in women to lead, whether they were costume designers, become part of the various committees and raise their voices, be it of any craft. क्योंकि हमें जो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम और प्रोसेस है, उसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है कि बहुत जगह जब तक हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो हमारी आवाज कहाँ सुनाई देगी। हमारे पास जो हमारे एक वन साइडेड एक पर्सपेक्टिव है वुमन का, वो कैसे बदलाव आएगा। तो बदलाव तो जैसे हम लोग आज चर्चा होती है कि पार्लियामेंट में इतने वुमन हैं या इतनी पार्टी में इतने वुमन हैं, क्योंकि आज वुमेन आर नाउ पायलट्स, वुमेन आर इन एयरफोर्स, और यहाँ मेट्रो चलाती है। कौन सी चीजें जिसमें वुमेन नहीं है। इसी नॉर्थ स्टेट्स में मैंने देखा है, द पैट्रियार्की सिस्टम स्टिल देयर, very strong in Punjab and other places, where even educated women have to slog day and night, और लड़कियों को कितनी भी डिग्रीज मिल जाए, वी आर स्टिल वेरी मच ओवर प्रोटेक्टिव। इसलिए आपने देखा होगा कि पंजाब से बहुत से लोग माइग्रेट होते हैं कनाडा में। वो इसलिए होते हैं कि मैं, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनका मोबाइल देखता तो वो बोलते थे, अरे यार घर में डिक्टेटर है। पेरेंट्स आर नॉट देयर फ्रेंड्स, नॉट देयर गाइड। तो ये खास तौर पे वुमेन के लिए सर, रिजू जी एंड माधवी जी, ये जो बिल पास हुआ है वर्किंग कंडीशन सोशल सिक्योरिटी, इसमें सारी चीजें हैं। ESIC है, ESIC के जो डायरेक्टर थे वो मुंबई मेरे कारण आए। हमने बहुत लड़ाई लड़ी और वो इम्प्लीमेंट भी होने वाला था, जिसमें
हर प्रोड्यूसर कुछ 100 में से 1.5 रुपया देता है और वर्कर 1.5 रुपया भी में कटता है। उसकी फैमिली उसके बाद ATM कार्ड पूरी इंडिया में कहीं रहे, उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, सारी चीजें थी। तो लेकिन वो लास्ट में चले गए, डिसअपॉइंट हो गए, बोले आपके यूनियन ही नहीं चाहते कि ये चीज हो, क्योंकि उनका होल्ड ओवर कम होता था। सो द थिंग इज, देन we carried on our fight. There is a director whose legacy is from Rajendra Prasad. His daughter, he would like me to mention, she is also an actress. तो हम लोग मतलब ये बहुत से प्रॉब्लम आवा, ये मेरी किताब जो थी सिंटा की सारी कमेटी जब नहीं आई, सुशांत, अमित, we used to refer to that book and I would every day sit down with them and tell them that ट्रेड यूनियंस में, आप ट्रेड यूनियन हैं, आपकी वेजेस हैं, आपके डिस्प्यूट हैं। एक मैकेनिज्म जो था डिस्प्यूट का, माधवी जो टेरेंट था 66 में, 1966 में, जो मेरी बुक में है, पहला MOU साइन हुआ, which was signed by Mr. Sippy and GP Sippy and major signatory was B.R. Chopra. Okay. तो वो 2008 तक चलता रहा। दैट वॉज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट कि हमारी जॉइंट डिस्प्यूट कमेटी होती थी, वर्किंग कंडीशन उसमें लिखी आती थी। तो 2010 में जब नया बनना था तो सारी यूनियन ने बोला तुम MOU लिखो। मैंने कहा एक वन कंडीशन, आपको समझना चाहिए जितने प्रोड्यूसर हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टर, रियल प्रोड्यूसर इज अ ब्रॉडकास्टर। अगर ब्रॉडकास्टर्स, आज कितने ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडिया में बाहर से, अगर वो पैसा देने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए करोड़ रुपया इंडिया से सोर्स ऑफ मनी जी, हर प्रोड्यूसर को एक कॉन्ट्रैक्ट पैसा देते हैं तो लिखते हैं इतनी देर में तुम पैसा दोगे, NOC लोगे, तुमने सबके पैसे दे दिए और ये वर्किंग कंडीशंस रखोगे। जी, तो छक मार के हर प्रोड्यूसर करता था, बिकॉज ही आल्सो अर्निंग बिलियंस ऑफ रुपीस। जी, आई हैव विजिटेड सेट्स, जी, some of them are my colleagues because I was general secretary of the directors body for 14 years, working with stalwarts like Khaja Ahmad Abbas and Chetan, all these people. So I did that apprenticeship over there and I came to know the real problem. तो मैं सेट पे जाता था तो मैं देखता था कि ये सेट तो कभी भी गिर जाएगा। फिल्म सिटी जो गवर्नमेंट ओन है, दादा साहब फाल्के के नाम है, वहाँ टॉयलेट्स, मैंने उनको बोला, एक बड़े अच्छे कलेक्टर वहाँ आए, मैंने एम्बुलेंस उनसे लड़ झगड़ के लगवा के दी, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ 4000 लोग दिन में काम करते हैं, यहाँ टॉयलेट्स होने चाहिए, खाना खाने के लिए डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए, एक छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से किसी को भी हार्ट अटैक आपको भी आ जाए तो हेलीकॉप्टर भी आपको गोल्डन आवर नहीं लेके जाएगा। तो फिर ये जब सरकार का ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये आप किसी प्रोड्यूसर को जब जगह देते हो सब्सिडाइज, उसके साथ ये कंडीशन रखो कि आप अपने यूनिट को ये सब चीजें देंगे। आज पेंडेमिक में भी वही 18 घंटे काम हो रहा है सर, और बहुत से एक्टर्स हैं जिनको EMI भरनी है, वो हम लोग बोलते हैं टेक्नीशियन, मैं बोलता हूँ हर एक्टर को सर्वाइव करने के लिए, टीवी के लिए, ही हैज टू फिल हिज EMI, उसको अपने खर्चे चलाने हैं, मेंटेन करना है। Many of them are committed suicide. You read every day. Why? क्योंकि उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सर आज ESIS के हॉस्पिटल खाली लगे, वो बोलते हमारे सारा फ्री ट्रीटमेंट दिया कोरोना में। आई हैव शोड इन माय फिल्म, इफ यू रिमेंबर, लास्ट में वो डायरेक्टर थे महेंद्र कुमार जी, आई एम इन टच विद हिम। वो मैं चला गया, बोले तुम वहाँ अलाउड नहीं है। दैट वाज माय वे ऑफ मेकिंग फिल्म विदाउट नेमिंग इट। मैंने कैसे जाके विदाउट इंक्लूडिंग, you can see even Divyanka Tripathi talking what happened with her when she was started her career. She has not named anyone, and I didn't want her to name anyone, but she could say that without my asking her. And he says when she saw that thing, he says mind-boggling. तो एक चीज में आता हूँ, कभी कभी क्या होता है सर, एंग्री यंग मैन जो होते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स बहुत होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं डायरेक्टर था तो हमारे एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम था असिस्टेंट के लिए जी। तो उसमें हमारे बोर्ड पे BR चोपड़ा, शक्ति सामंत थे। फनी, मैंने
बहुत सी किताबें लिखी, मोहन सैगल, बी आर चोपड़ा साहब, फनी मजूमदार, जिन्होंने रन रन शॉ से बहुत फिल्में बनाई। तो जी चोपड़ा साहब मुझे अपने बेटे की तरह समझते थे ऑफिस में। आपको पता है जी उनके ऑफिस में खाना जो बनता था भाभी जी, उसके लिए सतीश भटनागर, आपके अख्तर उल इमान, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे, तो वो जी आते थे। तो मैं उनके गोडाउन में चला गया फिल्म सिटी में। मैंने कहा आप जी रवि जी को बुलाइए, सारा डिजिटलाइज कर दिए, यू आर ए लीगेसी, आप एक हम्म, लीगेसी छोड़ के आने वाले। जब मैंने जी इनको गोडाउन छोड़ा, मुझे एक फोटो मिली हम्म, जो 1936 में चोपड़ा साहब सीने हेरल्ड का बूना विस्ता, वो जो लिखते हैं टाइटल, उसके एडिटर थे लाहौर में। ही वॉज एमए इन इंग्लिश। जी तो मैं लेकर आया, मैंने कहा आपने पता क्या एडिटोरियल में लिखा है? तो पूछे जी क्या? मैंने कहा हम्म, 36 में पवाई में एक एक्सीडेंट हुआ था, लीडिंग आर्टिस्ट मर गए थे, आपने इंश्योरेंस की बात कही थी, जी 1936। और जी आज आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, क्या आप करते हैं? और मुझे इजाजत हम्म, दीजिए कि मैं अपनी बुक में 2 पेज का मैं कुछ लिखूंगा अंग्रेजी में। जी बोला मुझे ड्राफ्ट दिखाना। मैंने कहा सर मैंने बचपन से ड्राफ्ट लिखा ही नहीं है, मैं रैंडमली लिखता हूँ, क्योंकि रैंडम राइटिंग, रैंडम इज प्योर अनअडल्टरेटेड, इट हैज नथिंग टू विद स्कीमिंग माइंड कि मैं पोलिटिकल जी करेक्ट हूँ। जी जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सबको बोला देखो, अंग्रेजी में किसी को इमोशनली टच करना अपनी भाषा नहीं है, दिस इज रिमार्केबल, उपेंद्र यू जॉइन मी। मैंने कहा जी सर मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरे को मेरी क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, मेरे अपने तरीके हैं, आई अर्न माई लाइवलीहुड बट आई विल नॉट डू दिस थिंग। बोला माई डोर्स आर ओपन फॉर यू टिल योर लाइफ टाइम। आप यकीन नहीं करेंगे, तब दादा साहब फाल्के अवार्ड जो था मेन, उस जी तक चोपड़ा साहब को नहीं मिला था। मैंने जिद्दोजहद लगा दी उनको दिलवाने के लिए, और मिल गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मैंने जितने भी किए, शक्ति सावंत हो, प्रकाश मेहरा हो, केदार जी जी शर्मा हो, जी हमने पहला शुरू किया था, उनकी पूरी स्टोरीज लिखी। क्या आप जी यकीन करेंगे, मोहन सैगल जो ओम प्रकाश के असिस्टेंट थे, कौन क्या था, उनकी स्ट्रगल जी क्या थी। तो हम्म, ऐसे इंसिडेंट आई वांटेड टू प्रिजर्व दैट लीगेसी, तो उसमें यह हुआ कि जब हम चोपड़ा साहब को मैंने बोला, तुम बात तो सही बोल रहे हो। मैंने कहा सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बहुत से जब पहली पहली फिल्म वो बनाते हैं, बोलते हैं मैंने घर में जेवर बेच दिया, उनके अंदर एक गुस्सा होता है और अच्छी जी बनाते हैं। उसके जी बाद जाके उनके अंदर एक, बहुत से मराठी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वेरी गुड, बट व्हेन दे, जी आई वोंट नेम देम, व्हेन दे जॉइन, दे हैड टू मेक सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस। अब जी देखिए टीम वर्क होता है, जो शायद वो मैंने कहते कभी हैं कि भी, मजबूरी मजबूरी में जो चीजें की जाती हैं और कम सहूलियतों के साथ जो चीजें की जाती हैं वो ज्यादातर बहुत अच्छी बनती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो माधवी जी, ये आपने सही बोला कि आई वांटेड टू स्टडी, माय मदर टोल्ड मी दैट यू शुड बी financially independent, and I think today's women are well read and they can take care of themselves, and they जी should never sacrifice. If they have talent, it will come out one day. We have a देर young है अंधेर actor. नहीं है। Gee, we have a young actor amongst us, Sahitya Sahai. Sahitya, you must be facing certain issues and problems in the work culture scenario in Mumbai. तो कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? पर्सनली आई फील कि प्रॉब्लम्स तो हमारे देश में या दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं होते ही हैं एंड ये बहुत जरूरी है कि आवाज उठनी चाहिए और उपेंद्र जी ने आवाज उठाई है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और ऐसे लोग इंडस्ट्री में और होने चाहिए। बट उसके साथ साथ मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द टाइम्स वी आर अभी क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूँ कि टेलीविजन में डेली सोप का चलन है। तो डेली सोप के जो क्या कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं कि दे हैव टू गिव सो मेनी एपिसोड्स इन सो मेनी डेज, तो दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन अ डेडलाइन। जी तो मैं प्रोड्यूसर के लिए भी मैं कई बार सोचता हूँ कि दे आर ऑल्सो इन अ रश, तो हर चीज नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आती है। और मेरे ख्याल से जैसे की फील्ड में भी हर इंडस्ट्री एक जैसी नहीं है, मतलब देर आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसी तरह हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि देर आर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हाउसेस, लार्ज स्केल हाउसेस, दे मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ।
personally, what I like about the film is he's also focusing on solutions because that's the way to go. और आजकल जो बात चल रही है कि इंडस्ट्री को इट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन सिटी, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, दूसरे स्टेट्स में दूसरे शहरों में लेके जाना चाहिए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, साउथ की इंडस्ट्री को वैसे ही साउथ में। तो इस पे मैं उपेंद्र जी की राय चाहता हूँ कि क्या अगर हमारी इंडस्ट्री दूसरे स्टेट में जाएगी, दूसरे शहरों में जाएगी और काम का उस तरह से एक बंटवारा होगा, तो विल दैट बी हेल्पफुल फॉर द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट? I would like to give you some input because you have spoken so well and very articulately. थैंक यू। 3 मुद्दे हैं सहाय जी। आप जब भी काम करते हैं आपको कोई लेटर ऑफ एंगेजमेंट 90% लोगों को नहीं मिलता कि हम आपका पैसा ये दे, कुछ नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इवन नेटफ्लिक्स का भी कई कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे पास आते हैं, मैं एडवाइजर हूँ बहुत यूनियन, तो दे आर वन साइडेड विच इज़ नॉट देयर, अपनी कंट्री में नहीं हो पाते हैं। तो टाइमली पेमेंट, चलो आपने वो मुद्दा उठाया कि प्रोड्यूसर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बीच में एक मुद्दा उठा था स्टार वालों से भी कि आप 1-2 दिन जो हम लोग हर वीकली हो गया, आपने देखा वो डायरेक्टर फिल्म सिटी में उसकी आंखें बिल्कुल काली हुई पड़ी है। आई टेल यू 70% से ज़्यादा लोग बीमार हैं इंडस्ट्री में, शाइगर, हाइपरटेंशन है, पैसा गया झक मारने, जब उनकी हेल्थ इज वेल्थ। आज सब लोग कंसंट्रेशन हेल्थ पर कर रहे हैं। मेरा कहना है उनको जो पैसे मिल जाते हैं, जावड़ेकर साहब ने बोला था हम दोबारा फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन मार्च तक एवरीबॉडी शुड क्लियर इट एंड चैनल्स विल सी जो प्रोड्यूसर को टाइमली पैसा देते हैं। बहुत अच्छे भी प्रोडक्शन हाउसेज है, ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं है। मेरा कहना है कि ये लोग आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। अब नया जो लॉ अगर हम पर लागू हो गया, उसमें 3 चीजें बताता हूँ, रिजू जी, माधवी जी एंड से, हर एम्प्लॉयर को आपको लेटर ऑफ एंगेजमेंट देना पड़ेगा, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लीगली होनी। दूसरा, हर बार एम्प्लॉयर उनका हेल्थ चेकअप करवाएगा। तीसरा, महीने के अंदर उनकी पेमेंट सेटलमेंट होगी। यूनियंस के हाथ में शायद रहे ना रहे, वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जैसे महामंडल है। आप देखिए दूसरी यूनियंस हैं अलग, इवन माथाड़ी वर्कर, डिब्बे वाले, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, उनको अपॉइंटमेंट सीएम सबसे इमीडिएटली मिल जाती है। मेरे ख्याल से आपसे ये आप जो ये बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो एक सजेशन मुझे अभी इमीडिएटली जो निकल रहा है वो ये है कि इन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, चाहे वो मुंबई में हो या चेन्नई में हो या कलकत्ता में हो या बैंगलोर में हो, सब जगह है, और ये सारी एसोसिएशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अब होता क्या है कि जो हम लोग भी देखते हैं, और चूंकि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई ऑल्सो डायरेक्ट, तो हम भी जब दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें हर प्रोडक्शन हाउस का एक नया अग्रीमेंट साइन करने को मिलता है और देखने को मिलता है, जो कि जैसा कि आपने कहा कि ज्यादातर वन साइडेड होता है, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अनुसार जी ज्यादातर कॉपी भी नहीं देते हैं वो, जी ज्यादातर वो नहीं देते हैं। तो एक सोल्यूशन उसका ये हो सकता है क्या, आप शायद या इस पे आप विचार करें और अपने जो बाकी जो महानुभाव लोग हैं उनसे आप ये इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं कि जब सब एसोसिएशंस हैं तो जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट है वो तो सिर्फ एक पेज का हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ 4 लाइनें लिखते हैं कि हमने आपको एज एन एक्टर हायर किया, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हायर किया, एज अ जूनियर आर्टिस्ट हायर किया या एज अ लाइटमैन हायर किया, and all rules of that particular association will be applicable and you will be paid according to that। हाँ, आपकी जो रेम्यूनरेशन है वो उसमें आप लिख दीजिए, क्योंकि हर आदमी की रेम्यूनरेशन अलग अलग होती है, कोई 1 रुपया चार्ज करेगा, कोई 2 रुपया चार्ज करेगा, कोई 3 रुपया चार्ज करेगा। सो आप सिर्फ ये रेम्यूनरेशन पार्ट क्लॉज है उसमें आप डाल दीजिए कि यू विल बी पेड दिस एज पर द एसोसिएशन रूल्स। एक्चुअली क्या होगा सर, वो जो लॉ बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट है जो हर प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, 30 पेज का कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, और ज्यादातर लोग आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, वो 30 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट देखते ही डर जाते हैं, तो वो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। मैं हकीकत बता रहा हूँ,
ज्यादातर 90% ऑफ दीज पीपल जो हमारी इंडस्ट्री में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े उसको साइन कर देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमको जो अमाउंट प्रॉमिस किया है वो लिखा है कि नहीं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है उन 30 पन्नों में, 25 पन्नों में, उनको हाँ नहीं। हाँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। मैं उसका और भी उसको एक्सपैंड करता हूँ एक्सपीरियंस में। वहाँ एक डर रहता है, चल तू नहीं साइन करेगा तो कोई और लाइन में खड़ा हुआ, किसी आदमी काम लेने के उसके अंदर आ जाता है, वो एक जाल है, एक भूल भुलैया है, वो कर देता है। उसको यही नहीं पता उसने अपना वारंट साइन किया हुआ अपने नाम पे। जब काम खत्म हुए, सर ऐसे केसेस तो मैं डेली देखता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं फाइट करता हूँ। उसमें ये लिखा होता है, ये आप इतना करेंगे, लास्ट में जाके आपको 90 दिन बाद पैसे मिलेंगे। बहुत सी कंपनियां छोटी मोटी है, भोजपुरी कितनी फिल्म आती हैं, वो केटरर जैसे बोल रहा था, वो वाइंड अप भी हो जाती है। नाउ यू डोंट नो व्हाट यू हैव साइंड, दे विल शो यू। जी क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट्स में भी मैंने देखा लोगों के नाम उड़ गए हैं, नए नए डायरेक्टर के भी उड़ गए हुए हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस है और विजडम है कि जब मैं आपको एम्प्लॉय करूं, मैं आपके साथ एक ब्रॉडर ब्रीफ, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, रिम्यूनरेशन, और हर क्राफ्ट का अपना एक वेजेस होती है, डेली बनी हुई है सर, वो हैं। जब तक ये एमओयू था, हर साल वो बढ़ती थी ऑटोमेटिकली 10%, वी आर प्रोटेक्टेड दैट वे। डिस्प्यूट सेटल होता था इतने दिन में, क्योंकि मैंने भी हेड किया था। प्रहलाद जी थे तब प्रोड्यूसर बॉडी के, मैं फेडरेशन का हेड था, मैंने ये इसमें किया था। प्रोड्यूसर्स, जी उसमें ये एक और चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर अब जो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो मल्टी कॉर्पोरेट्स हैं या स्टूडियोज हैं, जैसे कि आपने जैसे बताया नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, स्टार विच इज फॉक्स, वो है, सोनी है, वायाकॉम है। सो दीज आर ऑल इंटरनेशनल कंपनीज। ये आई एम श्योर जब ये बाहर काम करती हैं, अमेरिका में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, तो उनके जो वर्क कल्चर है, नॉर्म्स है, उनके जो अग्रीमेंट्स है, वो जिस तरह के होते हैं उनको तो वो फॉलो करती हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ इंडिया में वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ ये लोग एप्लीकेबल हैं उनके, उनको यहाँ क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? अगर उसमें से उनको वैसा का वैसा ही अगर यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है? मैं आपसे ये बात, आपने बड़ा अच्छा रेलेवेंट मुद्दा जोड़ा, क्योंकि इसके साथ जोड़ा हूँ। आज से 4 साल पहले लिस्बन में हमारा जो मीडिया एंटरटेनमेंट नॉन पॉलिटिकल है, जिनके बड़े बड़े लोग डावोस में भी बुलाए जाते हैं, तो मैं जो ये हमारा प्रोग्राम था, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ बहुत सालों से, एशिया में उनकी वर्ल्ड एग्जेक्टिव कमेटी में। तो मैंने जाकर के वहाँ हाईलाइट किया, यही जो आप बात कर रहे हैं इंडिया में, वाई आर वी, दे आर ट्रीटिंग इंडिया, दे आर बिहेविंग लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अपनी कंट्री में, मुझे यूएसए की यूनियंस ने लिखा, आई हैड बीन टू लॉस एंजल्स, वहां पर ब्रॉडकास्टर्स ने मुझे लिखा, और आज भी बहुत सपोर्ट आ रही है। दे आर वेन इन देयर ओन कंट्री, ये डॉक्यूमेंट में आप केजरीवाल जी का भी डायलॉग आपने सुना होगा इसमें, कि अपने देश में तो ये सब फॉलो करते हैं, तो हिंदुस्तान में आके क्यों नहीं? मुझे लगता है, जो मैं बात उसी में आता हूँ, और मैंने ये मिनिस्ट्री में भी स्मृति जी को भी एक बार पॉइंट आउट किया था, मतलब मैं चाहता था कि आप ये कंडीशन रख दो कि जो वो अपनी कंट्री में फॉलो कर रहे हैं, डोंट ट्रीट अस लाइक स्लेव्स, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, and we are proud that we are looked upon because of our ancient culture, our wisdom, and today we have some of the best scientists. We are way ahead with all our pitfalls and shortcomings. तो हमें एक्सप्लॉइट, उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, 144 countries which are part of this alliance, including working journalists, women, they all supported it overwhelmingly. I brought it back here, handed them to the union. They didn't take any action on that. See, Right? every level we got a worldwide global support from unions. But sadly and most unfortunately, nothing was done over here. The reasons I will not go because I know the reasons. So now the main thing, this film was also a result of that.
तो आपकी एक ये जो आदमी। फिल्म है लिविंग ऑन द एज, डीग्लैमराइजिंग हॉलीवुड, इसमें जो मुद्दे आपने उठाए, और जाहिर है सारे मुद्दे तो इसमें नहीं उठ पाए, लेकिन बहुत ज्यादा मुद्दे आपने इसमें उठाए हैं और बातचीत की है लोगों हम्म। से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो क्या उन मुद्दों पे कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकला है ज्यादातर पे, या कुछ मुद्दे अभी भी अनटच रह गए हैं सर जिन मैं पे सोल्यूशन होना बाकी आपको बोलूं, इन आवर main body of unions was formed in 1955. And you must have heard during your grandfather's time, there were scholars who were, can you imagine, Rishikesh Mukherjee, Salil Chaudhary is one of the founders. थी? That these people were active trade unionists at that point of time. We had so many people, Kishan Chandar, who were associated with writers and others. Now, they were well read, they were expert in laws, and producers respected these people. I also recall that at one point of time, those unions who were brilliant in their field were boycotted by producers. All the unions joined hands together to create a fund to support them. Now times have changed. See, uh, each the quality of leaders determines the performance, the concerns of the unions. I will not delve too much because already a persona non grata in many places, and I'm single-handedly fighting for it. I'm single-handedly at my age. I'm not afraid. I don't want to be political correct. I support any government, No, any I'm party. sure you are not alone. There are a lot of people who are No, there are supporting people you like and are you. with you. There are people like And this young actor. There is people like Madhi. I tell you, वो बोलते हैं ना, आप समझते हो अकेले जब कारोबार चलता है तो दुनिया के लोग जुड़ जाते हैं. जी, So I have a ये global family and people like you who have actually written to ILO, to which we are signatories, who actually written to so many, and Modi ji also replied. मैंने कहा कि मोदी जी, आपने बड़ौदा में पहली स्पीच दी, बोला मैं एक वर्कर हूँ पहले, और आपका इतिहास जानता है, आप कहाँ से कहाँ एक प्रेरणा थे. तो मैं चाहता हूँ इस पर भी एक आप फोकस करें, हमारी जो इंडस्ट्री है करके. तो अब लोग जागृत हो गए सर. अब वो Madhvi, you आपने want to देखा ask होगा, something? Yeah, माधवी जी I was रिपब्लिक just से. या या गो हेड. no. सर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सैटरडे संडेज को छुट्टी दी जाती है हर हाँ एक बिल्कुल. वर्कर्स को, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, चाहे डायरेक्टर लेवल पे हो, चाहे वो एक स्मॉल कस्टमर एसोसिएट हो. So यहाँ पे as Sahit rightly said कि production houses are time bound that they have to finish so and so, और हर लोग कंपटीशन में लगे हैं कि आज हमने 2000 एपिसोड्स पूरे करे, रिकॉर्ड ब्रेक किया. बट उसके पीछे कोई ये नहीं सोचता कि पहले जब हम जमाने में जब महाभारत जैसे सीरियल्स आते थे या रामायण जैसे आते थे, ओनली संडेज यूज्ड टू बी रिलेट, और पूरी सड़कें खाली हो जाती थी, और हम आज भी उनको देखते हैं. क्यों? क्योंकि तब लोगों को रेस्ट भी मिलता था, इतने कैंसर केसेस भी नहीं होते थे, और दे यूज टू बी काइंड ऑफ अ वेट कि हाँ हमें ये अभी देखना है. आज क्या हो गया कि वो सीरियल्स लगातार चल रहे हैं, 24/7 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको पहचानते नहीं हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. हाँ देखिए, आपने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट बोला कि इतने डेली है रामायण. उसके टाइम में ये बात मुद्दा उठा था, स्टार ने एक बार एग्री भी किया था कि हम एक छुट्टी तो करेंगे ही. बहुत बार ये हुआ कि हम एक मैंडेटरी हॉलीडे करेंगे. आई थिंक दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. I have been trying यस. earlier. I had thought of roping in going to file writ petition in the Supreme Court. That देखिए अभी the सर आई एम इंटरफेयरिंग यू बिकॉज टुडे द ट्रेंड्स हैव चेंज. अभी शॉर्ट फिल्म्स बनने लग गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो शॉर्ट एंड स्वीट सीरियल्स क्यों नहीं बन सकते? बन सकते यू नो, हैं बिल्कुल. अभी आपके सामने ताकि ही तो लोगों. टीआरपी का जी. चक्कर चल रहा है सर. उस वक्त जी जेन्युइन हाँ. होते थे. तो जी हाँ. व्हाट इज a yardstick barometer to measure that आपने 2000 content is still the king. Now, यस. it's not that जी, every content aired on OTP channels is bad. Some are very good. Look at the photography. वेरी गुड. Look at the यस. background score. Look at the यस. actors, genuine actors who have found work एब्सोल्युटली. there.
You understand? For the first time, Yes. now imagine 10 years back, we had great actors who were not chocolate heroes. वो पुराना मैचो और वो Mm. खत्म हो गया. You had Nawazuddin Siddiqui, you had जी Irfan, you had Ali Zaman Khurana. All their films are they have a body of work which will be looked upon Their in the work speaks. archival material to reference. Correct? Mm. Nobody Right. will remember these run of the mill films. आर्काइव में तो जाएंगे नहीं और कोई पढ़ेगा भी नहीं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग कंटेंट इज द किंग. अब आप घर में बैठ के नहीं देख रहे हो, लेकिन आप इंक्लूड होते हैं, इतने करोड़ लोग देख रहे हैं, इतनी देर है. इसी इट्स लाइक एन एडिक्शन. फर्स्ट यू Mm. मेक पीपल एडिक्टेड टू अ सर्टेन थिंग. ये हमारे घरों में ही है. Right. देन गो ऑन, उसमें कोई लॉजिक नहीं है. और एक चीज और कुछ नहीं बताऊं, है. मुझे पता है कविता चौधरी, आई थिंक यू शी इज आल्सो फ्रॉम एनएसडी. Riju ji, you remember Yes. that. And जी Her, she was her also sister on my was, show. yeah, her sister was IPS. They make film like Udan. Shekhar Yes. Kapoor was there. Uh, I remember at that time there was such a huge following of that particular serial at that point of time, Mm. you know. And uh, I I feel that you have raised a very valid question, Rijuji. I think there is a thing in this act. If it is applicable, I'll keep on updating all of you. You feel that this is there. Now the question is of enforcement. A lot of good laws are Yes. made in our country. We have the maximum number of laws in the world. I feel at the enforcement level, they should be strictly enforced. That जी will 80% of your concerns, all of our genuine concerns will be addressed to. Now, when an individual doesn't have to depend on anyone because he is protected, as you said, कि बाहर अमेरिका में ऐसा, he is protected by law of the land. It was there in Australia. In our health conference, we invited an old lady who was a federal officer. वहाँ भी एक प्रॉब्लम था. I'll tell you, when Bond films as well went to shoot in Australia, where actors are getting more paid, and even in New Zealand there was a confrontation. So ultimately, it led to the formation of MEA. Media Entertainment Alliance became so powerful that I remember one producer, I won't name it, was using a very eminent writer. उसने उसने आइकॉनिक फिल्म में उसने एक बार उनका नाम यूज करता गया, लेकिन उसे लिखवाता नहीं था, एंड सीरियल बिकेम वेरी बैड. एट दैट पॉइंट ऑफ ओके टाइम आई केम टू नो वो डायरेक्टर बनने वाला है, कोई सीरियल की, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. आई रोट अच्छा टू एमी हेड हु वाज इन कांटेक्ट में, ऐसा हो रहा है. बोला इज इट सो? मैंने कहा यस. उसने बोला यहाँ तो जो हमारे मोबाइल वैन हैं, गाड़ियाँ, टैक्सीज यूनियन इतने स्ट्रॉन्ग, उसको हम यहाँ कॉपरेशन नहीं देंगे. दैट इज इंटरनेशनल कॉपरेशन दैट एग्जिस्टेड. कैन यू इमेजिन? उसने जितने सीरियल करवाए थे, मिनिमम रेट होता था एक राइटर का पर एपिसोड, वही पैसा नहीं दिया, और उसने अपॉलॉजी राइटिंग में कि दीज फॉलोइंग एपिसोड्स वर नॉट पेंड बाय दिस आइकॉनिक राइटर. So we had, similarly, I went to Korea, and the Korean cinema was actually, like Hollywood छाया हुआ था. The seminar was on survival and nurturing national cinemas of each country. Now you know Korean cinema की फिल्में हमने कितनी चोरी भी होती हैं, और they have made some very remarkable films, तो वी पास अ रेजोल्यूशन. आइडिया था ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये रिजिजू का मुद्दा ना होगा पर्सन, आपका पर्सन, लेकिन ये मेरे साथ भी हो सकता है. यू आर वन फैमिली, विल रेसिप्रोकल बेटिस सपोर्ट ईच अदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको पता होगा सर, दिलीप साहब की फिल्म लीडर जब रिलीज हुई, तो बड़े आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस से बहुत से लोगों के पैसे नहीं दिए. ये काफी सालों उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे एक स्टॉलर थे आज जिंदगी, उन्होंने मुझे नरेट किया, जो मैंने बुक में भी लिखा. उन्होंने लंदन की लैब उन यूनियंस के अंदर आती, उनको लेटर लिख दिया. उन्होंने बोला ये फिल्म यहाँ प्रोसेस नहीं होगी, बिकॉज वी आर सिंपथाइज विद आवर को वर्कर्स एंड को आर्टिस्ट ओवर देयर, एंड दैट मनी वाज क्लियर्ड इन नो टाइम, इन नो टाइम सर. जी तो एक तो ये था हमारे यहाँ शुरू में. मुझे याद है मुंबई में म्यूजियम के बाहर जहाँ अपना आइकॉनिक रेस्टोरेंट है, वहाँ मिस्टर चैटर्जी आए, जूट वर्कर.
उन्होंने बोला कि अब स्टूडियो बंद हो रहे हैं और लोगों को अपने आप वर्कर कहना खराब लगता है, बहुत से लोग मिडिल क्लास मेंटालिटी। अरे बोला आप सब लेबर लॉज के अंदर होती है, एवरीबॉडी इज अ वर्कर, एवरी पॉलिटिशियन इज अ वर्कर, आप क्यों कर रहे हो? तो जब स्टूडियो बंद हो गए तो देवर ऑन देयर ओन, people started, forming a union under Trade Union Act, not under Societies Act. तो इसमें जब ये बुक रिलीज हुई ताज में ऊपर जाके, मैंने चार एक स्टंटमैन उनको ढूंढा, सम्मान दिया। दोज आर द पीपल हु सेड कि ग्रांट रोड में एक बार होती थी, दैट स्टंटमैन वाज लाइक वैलेंटिनो, वो लोगों को खाना खिलाता था। उसने देखा कि दादर के गुरुद्वारा के बाहर प्रोड्यूसर आते थे, हाँ तुझे क्या स्वर्ड आती, तुझे ये आता है, ये आता है। तो बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन रही। आपको पता है सिंगर जो कोरस सिंगर हैं, ओपी नैयर साहब वाज द फर्स्ट पर्सन टू से इफ दे आर डेली वेज अर्नर्स दे विल हैव टू बी पेड ऑन डेली बेसिस। ये किसी को मालूम नहीं है कि हमारे अंदर ही जो स्टॉलवर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनकी चीजों से लड़ाई कब से चल रही है सर, बहुत देर से चल रही है। तो जी, ये कुछ एक मुद्दों लड़ाई की है। लड़ाइयाँ हैं जो सालों से अरसों से चल रही है। 100 समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याओं का हल ढूंढा जा चुका है, इम्प्लीमेंट हो जा चुका है, Exactly. और कुछ कुछ समस्याएं रह गई हैं। आई एम श्योर विद टाइम उन समस्याओं को भी सुलझाया जा सकेगा, और आपकी फिल्म में जो समस्याएं दर्शाई हैं उनमें से भी कुछ समस्याएं शायद सुलझी हैं, कुछ बाकी हैं, और आपसे अभी बात करने में हमें और भी समस्याएं पता चली, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। माधवी यहाँ कुछ कहना चाह रही हैं, शायद एक समस्या है। जी हाँ, जी हाँ, मेरे दिमाग में बहुत बड़ी समस्या है कि अभी लेटेस्टली, आई मीन रिसेंटली, पार्लियामेंट में हमारे बहुत जो यूपी की बेटी कहते हैं और महानायक की वाइफ, उन्होंने, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम, बट उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री मोर देन 1,000 वर्कर्स को हर रोज काम देती है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया कि हमारे यहाँ काम मिलता है लोगों को, लेकिन किस तरीके से निकाल भी दिया जाता है 2 सेकंड में क्योंकि दूसरे आदमी लाइन में खड़े। क्या कभी उन्होंने वहां पे जाके इंस्पेक्टर्स को ले जाके दिखाया कि सच में उनकी कंडीशन क्या है जो वो वहां पे खड़े होके बोल रही थी? डज शी रियली मीन व्हाट शी सेड? आई डोंट थिंक। There is a wide chasm, CHASM, chasm between what people say and what people do and what people implement. You करेक्ट। understand? अगर यस, ये होता तो हमारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाते थे बहुत सी जगह। बिल्कुल। फिर वो So कहते this हैं is ना, यूं these होता are, तो क्या होता, ऐसा होता हाँ, तो क्या होता। और हम अपने तो अपने गमों को बड़ा समझते हैं, हम अपने दुख को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो लगता है कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। वी आर absolutely, फार you're मोर right, बेटर। I think absolutely it's यही है। so an thank industry. you It is. उपेंद्र जी। So on this note, वन I मोर think थिंग, वन मोर थिंग। ये चर्चाएं, जी हाँ, No, one more thing. I ओके would गो like ऑन। to, I would like to have short V blogs, what you call as video blogs. जैसे हम सिनेमाज में दिखाते थे कि keep the cinema hall clean. शॉर्ट वीडियो ब्लॉग्स बनाने चाहिए ताकि हर एक एपिसोड्स के पहले, जो कि मैं अपने शो में जरूर इंक्लूड करना चाहूंगी, कि एक मैसेज लिख के आए, सपोर्ट द वर्कर्स, सपोर्ट सो एंड सो, ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी दैट्स एट अ वन वेरी पॉइंट गुड ऑफ टाइम। सजेशन। एंड रिजू जी, मैंने ये भी लिखा था कि इट शुड बी मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कि कुछ चीजें वो डेली पब्लिसाइज कर सकती है लोगों को। सी माधवी जी एंड सहाय, सी सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को। इस डॉक्यूमेंट्री करेक्ट। ने जागृत कर दिया है, एक डिबेट शुरू कर दी जी है। आज हम यहाँ बैठे कर रहे हैं, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिकॉज हमें जी पता भी था लेकिन कुछ चीज हमने रियलिटी देखी, और क्योंकि हमने कोई बनावट नहीं की, कोई हमारे पास जी रिटर्न एजेंडा नहीं था बनाते वक्त, हमें तो लोगों की अनटोल्ड कहानियां सुननी थी, ट्रू जी स्टोरीज which joined all these people. Lot could have been done, but still within that time span, uh, it became very difficult for the world festivals को फिट कहाँ करे। ये शॉर्ट फिल्म में, फीचर फिल्म में आती, पिक्चर में
बट व्हेन द जूरी सॉ इट से नो, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा करके। तो मुझे लगता है, हालांकि आज तक मैंने इसका एक पैसा भी रिकवर नहीं किया है, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रिडेम्पशन है कि मैं इसके द्वार लोगों को जागृत कर पाया, क्योंकि बिल्कुल मेरा इस मुद्दा फिल्म ने लोगों को जागृत किया है, हमें जागृत किया है, और उसी वजह से हम आपसे यहाँ पे बात भी कर रहे हैं, और हमें हिम्मत बिल्कुल और हौसला अफजाई की है कि हम इस सब्जेक्ट पे बात करें, बात को आगे लेके जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि महकमे के कुछ उच्च अधिकारी जो इस बात को सुने, हमारी बात वहां तक पहुंचे, इस पे विचारें और कुछ समाधान इसके ढूंढें। थैंक सर। यू अगर उपेंद्र जी कभी हमसे बात करने के लिए। लास्ट लास्ट चीज बोलूं, अगर कभी ये एक्ट रियल मैंने में लग गया, तो मैं चाहूंगा कि उसकी पूरी नॉलेज आगे फ्यूचर में आगे आपसे ऐसा ही सेशन हो, ताकि जी आपके थ्रू, माधवी के थ्रू और सारे यंग एक्टर्स के थ्रू मैं उसका उपचार कर सकूं कि अभी आप सुरक्षित होने जी वाले हो, कानून आपको रिकॉग्नाइज करेगा। तो जी बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरी लड़ाई चल रही है। वो 200 पेज का हिंदी में जो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू कर दी कि जी नोटिफिकेशन मीन्स प्रेसिडेंट के एक्सटेंड देने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, और ये कहा जा रहा है कि मार्च में ये टोटो में हो जाएगा। लेकिन मैं कहने से पहले पूरा श्योर होना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ लॉयर्स हैं, जमशेद मिस्त्री हैं और कितने लोग हैं, मिस्टर सिन्हा, जो मुझे पूरी इसकी ना मार्क करके देंगे ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही। तो उसमें जी माधवी जी, एनीबॉडी कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट टू बिल्कुल प्रोटेक्ट हिज राइट। बिल्कुल। दैट तो विल बी अ इसी नोट रेड पे लेटर डे। थैंक यू उपेंद्र जी। हम लोग जरूर इस बारे में और चर्चा करेंगे, एक सेशन और या रखेंगे थैंक यू बहुत सर। जल्द, और जो भी विषय छूट गए हैं उन पे चर्चा करेंगे और चर्चा करते रहेंगे पूरे साल। हमारे पास अब ये एक और इंटरनेट माध्यम समाधान भी हमें मिल गया है। ढूंढेंगे। हाँ, बिल्कुल, और And thank ये एक you माध्यम and हमें best मिल गया wishes इंटरनेट। to you and to the young actors, Sahai, थैंक यू who सर। may be having so थैंक many dreams. I wish you good luck. I'm थैंक in यू। Mumbai, and anytime you need my guidance or anything, I'm always there as a friend, as a well-wisher, and as a guide to help you. And the same applies to Madhvi also. Good luck. थैंक यू थैंक सो यू मच उपेंद्र जी सर, Maybe, थैंक यू फॉर सो मच। शेयरिंग। yeah. Thank you for sharing your film to Lift India Filmotsav World Cinefest It was 2020. my privilege. Lift here stands for literature, illusion, film, frame, TV, and theatre. Thank you, Pinchi. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर।